Order of a reaction in kinetics has a very very important role to play in our day to day lives. And also जब भी हम लोग speed of a reaction या kinetics of a reaction calculate कर रहे हैं, rate of a reaction calculate कर रहे हैं, तो order of a reaction जो है वो एक important concept है. So basically when we're talking of order of a reaction, इसमें से of course questions तो आपको आएंगे ही, but let's understand कि order of a reaction होता क्या है. तो order of a reaction, that is defined as the sum of powers to which concentration terms are raised in a rate law expression. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग एक रिएक्शन ले रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी टू गिव अस प्रोडक्ट्स. ठीक है, ये आपके पास आ गया. नाउ ओवर हियर रेट लॉ के अकॉर्डिंगली रेट विल बी इक्वल टू व्हाट? रेट विल बी इक्वल टू k into concentration of a raised to power a, b raised to power b, c raised to power c. So order of this reaction, that will be equal to a plus b plus c. All right. Or we can say that order of a reaction is equal to P plus Q plus R, where P, Q and R may or may not be equal to ABC. So if they're equal to ABC, then the order is calculated as A plus B plus C. If they are not equal, then it is calculated as P plus Q plus R. And this is an experimental determination. थ्योरेटिकल नहीं होता है, ये होता है एक्सपेरिमेंटल. ठीक है, सो अब देयर आर अ लॉट ऑफ वी हैव रिएक्शंस ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स. जैसे हमारे पास आ गया रिएक्शंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर. तो रिएक्शंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर वी कैन टेक एग्जांपल्स ओवर हियर. जैसे हमने ले लिया डीकंपोजिशन ऑफ N2O5. सो वी हैव N2O5 gaseous, which is going to give us 2NO2 gaseous plus half of O2 gaseous. तो अगर हम यहाँ पे रेट लिखते हैं इस रिएक्शन का, रेट विल बी इक्वल टू K into concentration of N2O5. Therefore, order of this reaction, that will be equal to 1. Okay, let's take examples of second order reaction. तो हम ले रहे हैं decomposition of nitrogen dioxide 2NO2 to give us 2NO plus O2. So rate would be given by, rate is equal to K into concentration of NO2 raised to power 2. Remember कि यहाँ पे हम लोग रेट लॉ को कंसिडर कर रहे हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन को कंसिडर नहीं कर रहे हैं. ठीक है, so rate is equal to K into concentration of NO2 raised to power 2. Order of a reaction over here, that is going to be 2. Okay, let's take example of third order reaction. Now we're taking over here a combination of 2NO plus O2 to give us 2NO2. ठीक है, ये हमारे पास आ गया. अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ, रेट दैट इज गिवन एज K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO का स्क्वायर इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2. So what is going to be the rate? 2 plus 1 which is equal to order 2 plus 1 which is equal to 3. ओके, फिर उसके बाद हमारे पास फ्रैक्शनल ऑर्डर भी होता है. फ्रैक्शनल ऑर्डर में जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने एक रिएक्शन ले लिया CH3CHO, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि कैसे पता चलता है कि फ्रैक्शनल ऑर्डर है. तो गाइज ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है. सो अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन इसमें आता है देन इट विल बी गिवन टू यू. ओके, कि उसका जो पावर है वो आपको दे रखा होगा. तो अब यहाँ पे जो रेट है वो CH3CHO की कॉन्सेंट्रेशन के साथ किस तरह से इफेक्ट होता है, दैट इज K इंटू CH3CHO रेज टू पावर 3/2. Okay, so order over here is going to be fractional. Order is 3/2 or it is equal to 1.5. राइट. जीरो ऑर्डर रिएक्शंस भी होती है जिसपे जो रेट है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता. तो जीरो ऑर्डर में जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग अमोनिया की डिसोसिएशन कर रहे हैं, तो जनरली यू विल सी कि जो कैटेलाइज्ड रिएक्शंस होती हैं, गैसियस रिएक्शंस होती हैं,
वो जीरो ऑर्डर होती है. तो 2NH3 in presence of platinum is going to give us N2 plus 3H2, right? So rate यहाँ पे जो होगा that will become equal to K into concentration of NH3 raised to power 0. It is experimentally seen कि जो concentration होती है that is not affecting the rate. Okay, so it means rate over here that will be equal to the rate constant which is K. फिर हमारे पास सीडो ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं. सीडो ऑर्डर रिएक्शंस का मतलब क्या हुआ कि फॉल्स ऑर्डर रिएक्शंस. जनरली जितनी भी हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर ले, RCOOR plus H2O give us RCOOH plus ROH. ठीक है. सो दिस इज गोइंग टू फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. रेट यहाँ पे जो होगा दैट विल बी गिवन एज K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RCOOR. राइट. सो ये एक सीडो ऑर्डर रिएक्शन है. देखने में हमें टू सेकेंड ऑर्डर लग रही है बट है ये फर्स्ट ऑर्डर. फिर इन्वर्जन ऑफ केन शुगर भी अगर हम लोग लेते हैं, जैसे C12H22O11, इसकी हमने हाइड्रोलिसिस कर ली, give us C6H12O6 plus C6H12O6. ठीक है. सो यहाँ पे एक बनता है ग्लूकोस और दूसरा बनता है फ्रक्टोस. तो आप देख सकते हो कि ये भी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन ही है ना. ठीक है. तो वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है उसको जनरली हम लोग कांस्टेंट लेते हैं. तो रेट ओवर हियर दैट विल बी इक्वल टू K इंटू C12H22O11. So that is how the rate will be given. So this is also a pseudo first order reaction. जो units होते हैं rate constant के, वो depend करते हैं on the order of reaction. So generally unit that is of a rate constant that is given as 1 upon unit of concentration ये बहुत इंपॉर्टेंट है, N-1 इंटू इनवर्स ऑफ टाइम. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से आपको ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है. तो रिमेंबर कि अगर आपको ऑर्डर दिया हुआ है मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, देन इट इज गोइंग टू बी अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है. अगर आपको दिया हुआ है यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट एज पर सेकेंड, देन इट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है. अगर आपको दिया है पर मोल लीटर पर सेकेंड, देन इट इज गोइंग टू बी सेकेंड ऑर्डर. ठीक है. और अगर आपको दिया है मोल पर स्क्वायर लीटर स्क्वायर per second, then it is going to be third order. और अगर nth order का हमको find करना है, then it is generally given as n moles per liter raised to power n-1 per second, जहाँ पे n is going to be the order of the reaction. So this is for your nth order. तो आप जो ये लास्ट वाला है, इससे किसी भी रिएक्शन के या रेट कांस्टेंट के यूनिट को फाइंड कर सकते हो. राइट. सो आज यही तक करेंगे. अच्छा, एक छोटा सा टॉपिक हमारा रह गया, कॉमन एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेसेस. रेडियो एक्टिव डीके जहां पे भी आपको क्वेश्चन में दिया है, whether they have given it as a first order or not, please remember it is the first order. Okay. Rate of growth population if there is no change in the birth rate or death rate. Rate growth of a bacterial culture until the nutrients are exhausted. So all these, they are examples of first order reaction.
Now, in our next class, we are going to do a lot of examples of various orders of reactions. Okay. And we will also do the methods of determination of order of a reaction. So just stay tuned and keep sharing and following all the videos.